Bismillahirrahmanirrahim. I'm very grateful to the ENT department of Dow International Medical College. This is basically my old home ground, and I'm very thankful to all the faculty members under the leadership of Professor Atif Hafiz. And I must congratulate the whole team, and especially Dr. Atif, who took an initiative to conduct these type of regular medical educational series. And today's program is one of them. And basically this is to facilitate, to help, to orientate, for the orientation on the system which has to be faced by you all people during your course and short and long cases. इजी ये होगा कि हम आराम से बात करें ताकि समझने में और क्रॉस क्वेश्चनिंग और मोस्ट वेलकम अगर कोई सवाल उसी वक्त कोई करना चाहे कोई चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए यू आर मोस्ट वेलकम ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल I must congratulate those who have cleared the examination yesterday. Especially मैं तो डॉक्टर अफीफा को और डॉक्टर जीनत अभी मिसिंग है और इसके अलावा कोई कल पास हुआ है and who are appearing for the first time, second time in the talks and Viva clinical. Yeah. Okay. तो अभी बाकी बीजीज थोड़े से क्या लेट आ गए कल भी लेट आ गए Then on the way. Then is always on the way. ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसीलिए किया और दूसरा ये कि जैसे आतिफ ने भी कहा कि दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज जो पहले अपीयर हो चुके हैं उनको सिस्टम पता होता है अनलकी भी वो क्लियर नहीं हो पाते लेकिन सिस्टम से ओरिएंटेड हो लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको कम से कम इनिशियली अगर हम थोड़ा ब्रीफिंग देते हैं कि क्या सिस्टम है किस तरीके से आपने टॉक्स में अपीयर होना है किस तरह से आपको अटेम्प्ट लेने हैं किस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग केसेस से अंदर जाना है तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स Arcelor since long conducting the FCPS and CPS and theory as well. तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो भी एग्जामिनर्स हैं who are invited to take the examination are the seasoned examiners, senior examiners, ठीक है, but they are always active. एक जो खौफ होता है जब हम भी अकेले होते थे तो सबसे ज्यादा खौफ होता है कि पता नहीं कैसा एग्जामिनर होगा क्या पूछ लेगा कितना पन करेगा कितने टोटे मारेगा ऐसा कुछ नहीं This examination is usually a basic examination होता है और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा long case because 1 hour duration का होता है तो उसमें in depth knowledge होती है otherwise जो routine आपकी practice होती है in the ward जो discussions होते हैं in the ward ठीक है वही सारी चीजें होती हैं so you have a long case में because the examiners have half an hour to discuss और फिर उसका एक system है वो मैं भी आपको show कर दूंगा According to that SOPs or the operating areas, वो आपको उससे related सवाल आते हैं। लेकिन उनका attitude जो होता है वो हमेशा या वो silent होते हैं और उनको कहा भी जाता है कि become silent because अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं और examiner show कर देता है तो फिर आपका जो viva होता है वो जो है मुतासर होता है उससे। तो इसीलिए हमारी पॉलिसी होती है कि हम आपकी बात सुनें अगर कोई जवाब सही है तो इट्स ओके और अगर फिर उसमें मतलब ये कि आपको कोई लेट डाउन ना करें कोई लूज स्टॉप ना करें कोई नेगेटिव रिमार्क्स ना दें ताकि बच्चे को दिस इज बेसिकली अ हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनीज क्योंकि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज आपने बताई रॉन्ग बताई और उस पर अगर कोई नेगेटिव रिमार्क दिया तो फिर वो आपका रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में लग पाता
تو اس کو بجانے کے لیے تو اسی لیے میں نے پہلے جملہ کہا کہ ایگزامینر از آلویز ویری ہیلپنگ. کینڈیڈیٹ کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ رہ جاتا ہے ایگزام میں. کیونکہ ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں ایگزام میں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو پاس کریں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک اسٹینڈرڈ اس ٹو بی مینٹینڈ, کیونکہ یہ ایگزٹ ایگزام ہے تو اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا کہ آپ کی نالج اگر کم ہے تو آپ کو ویسے ہی پاس کر دیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. بٹ یو ہیو ٹو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا کیس, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایگزام میں جاتے ہیں جس پارٹ کے لیے آپ اپیئر ہو رہے ہیں یو ول بی ٹو بی فوکسڈ آن دیٹ. جیسے اگر ٹوکس میں جا رہے ہیں تو آپ دماغ سے شارٹ اینڈ لانگ کیسز کو نکالیں, وہ نیکسٹ ڈے ہوگا یا آفٹر نیکسٹ ڈے جو بھی ہوگا, لیکن وہ بات کی بات ہے. اس دن پہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس دن کو آپ ہینڈل کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹوکس پہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میرا شارٹ کیس کیسے ہوگا اور لانگ کیس کیسا ہوگا, تو وہ ایگزام کو آپ نہیں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹوکس والے دن آپ کا ٹوکس ہے. اب ٹوکس کا جو سیٹ اپ ہے, جو سسٹم ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے ہوگا, کس طرح سے آپ اور کس طرح کے کوشچن ہو سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں اس پہ رکھی جاتی ہیں, کس ایریا سے رکھی جاتی ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں. نیکسٹ. سو جو فرسٹ ہوتا ہے وہ ٹاپس ہے, ٹھیک ہے. ٹاسک اورینٹیڈ اسیسمنٹ ہوتا ہے اور اس میں 15 انٹریکٹیو اسٹیشنز ہوتے ہیں, رائٹ. 15 انٹریکٹیو اسٹیشنز ہوتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر 20 لوگوں کا گروپ ہو ان آل تو 2 راؤنڈس کی جگہ ایک ہی راؤنڈ ہو اور اس میں 5 پلس اسٹیشنز. It depends upon the number of candidates on that center. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کے لیکن آپ کے جو انٹریکٹیو اسٹیشن ہوں گے اینڈ یو ہیو ٹو فیس ون ایگزامینر آن ایچ اسٹیشن. ٹھیک ہے, کلیئر. اب 15 جو انٹریکٹیو اسٹیشن ہوتے ہیں وہ 6 منٹس یا 7 منٹس کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی چینج اوور ٹائم بھی ہوتا ہے. یعنی ایک بیل بجے گی تو اس کے بعد سے آپ کا سیکنڈ اسٹیشن شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ کوئکلی موو کریں سیکنڈ اسٹیشن وداؤٹ اینی ڈیلے, تاکہ یو گیٹ دا میکسیمم ٹائم ٹو آنسر دا کوسچنس. ٹھیک ہے. یوزلی ہر کیس کے اندر ویسے تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن جو سوالات ہوتے ہیں وہ 4 to 6 اور 7 کوسچنس ہوتے ہیں اراؤنڈ, جس میں فرسٹ کوشچن ہوگا ڈائگنوسس کا, سیکنڈ پہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, انویسٹیگیشن, مینجمنٹ, جو بھی کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹیشن ہوتے ہیں اس میں 4, 5, 6 سوالات ضرور ہوتے ہیں. اگر آپ جواب دینے میں if you take a lot of time to answer the question تو there is danger کہ آپ جو ہے وہ آپ ہی میں کچھ کوشچن آپ کر رہے ہیں. اچھا, بیکاز دس از بیسکلی یہ کس طرح کا ایگزام ہے, یہ ایگزام ہے آپ کا انٹریکٹیو تو ہے لیکن اسٹرکچرڈ. جو سوال عفیفہ سے پوچھا جائے گا وہی اعجاز سے بھی پوچھا جائے گا, وہی جو ہے حرا سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی اور سوال کیا جائے اور دوسروں سے کوئی اور سوال کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ سیم, تاکہ جج کیا جا سکے ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مارکنگ ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ کوسچنس کی اکارڈنگ ٹو دیئر ویٹیج ڈفرینٹ مارکنگ ہوتی ہیں. کسی کوسچن میں 1 مارک ہوگا, کسی میں 2, کسی میں 3, رائٹ. اور آپ کو اگر آپ نے کریکٹ جواب دیا, جیسے ڈائگنوسس ہے, آپ نے اسپاٹ ڈائگنوسس دی, یو کین گیٹ 2 مارکس ہے تو فل 2 مارکس ملیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹیگیشن میں 6 چیزیں تھیں اور 3 مارکس تھے, اور آپ نے فرض کریں کہ ایگزامپل دے رہا ہوں, 4 چیزیں بتائیں, 2 چیزیں نہیں بتائیں, تو یو کین گیٹ 2 مارکس آؤٹ آف 3. لیکن کلیکٹیولی آپ کو 6 پلس چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ تمام ٹاپس کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے ہر اسٹیشن پہ ضروری نہیں ہے کہ 6 ہو, لیکن کلیکٹیولی آپ کا 60 پلس سے زیادہ ہونا چاہیے, 60, 65%.
तो इसमें ये एक फायदा होता है कि इफ यू doing the wrong in one station, लेकिन you can get maximum marks in the other station, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। टॉप्स एग्जामिनेशन में हमेशा ये एक फायदा है कि आपको रिकवरी का वक्त मिलता है। अगर आपने एक 2-3 अच्छे दे दिए हैं और एक कोई खराब कर दिया है तो कोई इसमें टेंशन की बात नहीं, राइट। तो ये इस तरीके से होता है। जो 15 स्टेशन जो वहाँ पे हम लोग सेट करते हैं आगे, उसमें तमाम जो हमारा एरिया है ईएनटी का उसको हम कवर करते हैं। यूजुअली वो ऑटोलॉजी से रिलेटेड 3 या 4 केसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से राइनोलॉजी से रिलेटेड 2 या 3 केसेस होते हैं इन स्टेशंस, केसेस का नंबर ऑफ स्टेशंस। एंड थ्रोट से रिलेटेड 2 or 3, head and neck से related 2 or 3, larynx 1, 2 and KK and esophagus 1 to 2 cases, right? तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन यही होती है। जैसे ऑटोलॉजी के 4 ले लिए, राइनोलॉजी के 3, लेकिन हम इन ऑल 15 स्टेशंस होते हैं। तो इसमें जो 6 मिनट होते हैं उसमें आपको जो भी सवाल हैं उसके एडिक्वेट आंसर। तो इसमें एक टिप ये है कि जो चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है, उसको आप फोकस करें, टू द पॉइंट जवाब दें, इररिलेवेंट कोई बात ना करें। इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर एज वेल एज लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है आपका। प्रेजेंटेशन थोड़े से उसमें ज़्यादा सवाल होते हैं, डिस्कशन टाइम ज़्यादा होता है, तो आपको उसी 6 या 7 मिनट्स के अंदर वो पूरा का पूरा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सारे सवाल के जवाब, कोई सवाल रह न जाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। जितना आप क्विकली टू द पॉइंट फोकस जवाब देंगे उतना ही आपका अपना फायदा है। ये जो मैंने 15 स्टेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि वहाँ पे 15 इंटरैक्टिव स्टेशंस हैं, ईच स्टेशन हैज वन एग्जामिनर, ठीक है। इसके अंदर जो यूजुअली मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होता है या रखा जाता है उन 15 स्टेशंस में, आई मीन ऑल, तो उसके अंदर जो वो या तो कोई क्लिनिकल पिक्चर होगी, ठीक है। फर्स्ट कर दें कि CHE है, आप समझ एक्सोफेटिक ग्रोथ है और उसमें स्किन भी इन्वॉल्व की हुई है, एक वाज़ेह पिक्चर है। एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि जितने भी वहाँ पे चाहे लॉन्ग केस हो, चाहे शॉर्ट केस हो, चाहे ही टॉक्स हो, उसके अंदर डेफिनेट डायग्नोसिस वाले पेशेंट्स या क्लैरिटी वाले पेशेंट्स मौजूद हो। अगर कोई किसी चीज़ में एम्बिग्युइटी होती है, कोई एक्सरे के अंदर कुछ प्लस माइनस होता है, तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ दिस स्टेशन तो हम लोग उसको नहीं देते, ताकि बच्चों को कोई किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होगा। अगर CT स्कैन होगा तो, और अगर लेजर पॉलिप है तो उसमें जो भी हम एक्सरे फिल्म रखेंगे, CT फिल्म रखेंगे, उसके अंदर डेफिनेट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स के साथ। इसी तरीके से लिरिक्स का अगर कोई है, जैसे चीक है, नेक का है, तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे क्लियर आपकी जो है डायग्नोसिस बन रही होती है, और उस पर अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपका लॉस हो जाता है। तो इसका जो क्लिनिकल पिक्चर्स हैं, फर्स्ट करें कि CHE है, इसके इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि आप एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, आपको कमांड दी जाएगी, उसके लिखा हुआ होगा कि प्लीज सी दिस पिक्चर, ठीक है, एंड गिव द आंसर्स asked by the examiners। बस इतना सा लिखा होगा, और आपने उसको विदिन फ्यू सेकंड्स अगर आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तवील उसमें टाइम ना लें, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम सर्व ना करें किसी भी चीज़ में, क्विकली उसको देखने की कोशिश करें। और ये कैसे आती है, ये आपकी प्रैक्टिस है। जो आपने पीछे 4 साल की रेजिडेंसी की है उसके अंदर, और फिर स्पेशली जो ये एग्जाम के दौरान में 1-2 महीने होते हैं, इसमें जो आप रेगुलर वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं बोर्ड के अंदर, तो वो आपको इस काबिल बनाता है कि आपके रिफ्लेक्सेस रिस्पॉन्स में वो क्विक हो जाता है उसके अंदर। तो आप जल्दी से उसको देखें, पिक्चर को देखें, उसके बाद फिर जाहिर है कि नेक्स्ट सवाल होगा कि व्हाट इज योर डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस पूछेंगे, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, ठीक है।
پھر اس سے ریلیٹڈ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہیں. پھر اگر سی اے کا ہے تو ٹی ایم اسٹیجنگ پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں گے کہ اس پیشنٹ کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دیکھیں گے اگر اس کے انوالومنٹ ہے ٹی فور ریجن ہے تو پھر جو مینجمنٹ ہوگا اس کا وہ ٹی فور کے حساب سے ٹھیک ہوگا. اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ ٹی ون ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اور ٹی ٹو ہوتا ہے, پھر جو چیز نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو سوال کیا جائے گا تو اس خاص پرٹیکولر پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہی سوال کیا جائے گا. تو یہ آپ چیز بالکل کلیئر رکھیں کہ بک میں یہ ہوتا ہے کہ if the lesion is T1 then this is the treatment option. T2 یہ T3, لیکن یہاں پہ اگر T3 اور T4 اگر جو لیجن بالکل obvious ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ سوالات کیے جائیں گے اور وہی آپ کو آنسر دیں گے. اب اگر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر مینجمنٹ تک کی بات نہیں ہوگی, اس کی مینجمنٹ کے بعد ریکنسٹرکشن اگر ہے تو فلیٹ کی ریکنسٹرکشن ہے اس کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو سوالات بنتے ہیں اس اسپیسیفک اسٹیشن پہ وہ بنائے اس طرح جاتے ہیں کہ ودن 6 اور 7 منٹس کا ٹائم ہے اس میں وہ مینج ہو سکتے ہیں. سر ڈیلے وہاں ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ کینڈیڈیٹ سوچتا ہے وہاں پہ آنسر کرنے میں ڈیلے کرتا ہے, پھر اس میں ایک آدھ سوال رہ جاتا ہے جس طرح ہے کہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک سیناریو ہے, ٹھیک ہے, فرض کر لیں کہ ایک ایسی سیناریو دے دیتا ہوں کہ ڈسچارجنگ یا کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس میں گرینولیشن کی چیز موجود ہے, فیشیل اور پیلسی ہے. ٹھیک ہے, ہی اور شی از ڈائبیٹک سنس لانگ, تو کیا بنے گی ڈائگنوسس؟ ٹھیک ہے, تو جو سیناریو ہوگا وہ بھی اٹ ول بی ویری کلیئر. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دو پوائنٹ ایسے ہوں گے کہ جس سے آپ کو ریچ ڈائگنوسس. اگر گرینولیشن ہے تو کرونک ڈسچارجنگ ایئر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس میں اگر ڈائبٹیز کا دیا ہوا ہے, ہسٹری کا ٹائم دیا ہوا ہے, سنس لانگ دیا ہے, فاؤل اسمیل ڈسچارج دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو کلو دیتا ہے کہ دس از اے کیس آف مالگننٹ ہیپیٹک السر. اب جو سوالات ہوں گے وہ پھر آپ سے فرسٹ تو ڈائگنوسس ہوگی, پھر اس کی مینجمنٹ انویسٹیگیشن ہوگا کہ آپ کیا کیا کرائیں گے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر ڈسچارجنگ ایئر ہے تو آپ کو ڈونٹ فارگیٹ دا بیکٹیریولوجی. ٹھیک ہے نا, سی ٹی اسکین از امپورٹنٹ. اگر کوئی پیشنٹ نہ ہے تو یو کین آسک فار این آر آئی ایز ویل. تو جہاں پہ جو ضرورت ہے اس حساب سے آپ نے جوابات دیں. لیکن بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائگنوسس, ڈفرینشیل ڈائگنوسس, تو اس کے اندر بھی انویسٹیگیشنز, مینجمنٹ پلان. ٹھیک ہے, کہیں کہیں جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی بات بھی ہو سکتی ہے. جیسے اگر فیشیل نرو ہے, بیلس پیلسی ہے یا کوئی ایسا آپ کو پکچر دے دی ہے بیلس پیلسی کی, اب اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پروگنوسس پوچھیں گے, کچھ ایڈیشنل سوالات ہو سکتے ہیں. پازیٹیو ریزن ایٹیولوجی پوچھ لیں گے اس کی, ٹھیک ہے, بیلس پیلسی کی, تو اس کے حساب سے پھر اس کا مینجمنٹ ہوگا. اور اس کے بعد اس کی آپ کے پیشنٹ کو ہاؤ ول کاؤنسل, واٹ از دا پروگنوسس آف دس ڈیزیز. ٹھیک ہے, what complications can arise, right, آئی کی مینجمنٹ اس میں کیا ہو سکتی ہے, right, فزیوتھراپی کا کیا رول ہے. تو اس طرح کے سوالات ہوں لیکن ہوں گے بہت شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ اینڈ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پیشنٹ. اسی طریقے سے اگر امیجنگ ہے, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی اور پی این ایکس رے, لائک ایکس رے پی این ایس ہے یا لیٹرل ویو, براڈ ویو ہے, تو اس کے اندر بھی ڈیفینیٹ ڈائگنوسس ہوگی, کلیئرٹی ہوگی. سی ٹی اسکین اگر رکھا جائے گا تو سی ٹی اسکین آپ کو پین سے پوائنٹ کرنا ہوگا. اب سی ٹی اسکین اگر آپ سے ٹاکس میں پوچھا جائے گا تو آپ جمپ آؤٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ دس از اے سی ٹی اسکین آف فلاں فلاں. ٹھیک ہے, 1061 یہ اگر ریڈ کر سک رہے ہیں آپ اس کے اندر تو آپ اس کو ایک ڈسپلن طریقے سے بتائیں گے, تو ظاہر ہے یہ پریکٹس ہوگا. ٹھیک ہے, کہ ایج اتنی ہے اینڈ دس از دا سی ٹی اسکین آف دیٹ ایریا. اب جو بھی ایریا ہے, ٹھیک ہے, کنٹراسٹ ہے, گرین ہے, تو آپ بتائیں گے. اینڈ آئی کین سی, یعنی کہ پھر فائنڈنگ کی بات ہے. اگر تو ایگزامنر آپ سے کہتا ہے کہ ایک کمانڈ ہوتی ہے کہ پلیز ریڈ دس
सी टी स्कैन, तो आपने इस्तेमाल से जाना। और अगर एग्जामिनर कहता है कि आप इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स बता दें, तो यू कैन जंप टू द पॉजिटिव फाइंडिंग्स और द डायग्नोसिस। हो सकता है उसके बाद डायग्नोसिस के बाद सवाल काफ़ी हों, तो वो आपसे ये बाकी टाइम को वो बचाने के लिए आपको डायरेक्टली डायग्नोसिस करा जाए, तो आपने फिर वहाँ पे वही कहानी शुरू नहीं करनी, वरना उस पर वो बहुत दफ़ा इरिटेट हो जाता है कि मैंने पूछा क्या था और आप काफ़ी टाइम दे रहे हैं। तो इसीलिए जो चीज़ पूछी जा रही है उसको अंडरस्टैंड करना एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द होल गेम। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सीटी स्कैन है उसके अंदर जो भी फाइंडिंग है तो वो आपको हर दफ़ा वो नॉर्मल एनाटॉमी भी पूछ सकते हैं। जैसे फेस का अगर नेजल पॉलिप है और दूसरा साइड जो है वो क्लैरिटी के साथ है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें वो पॉइंट आउट कर सकते हैं वेयर इज द डायनामिक एप्रेशिया, वेयर इज द कॉम्प्लोजा, या जो भी उसमें जो फाइंडिंग्स नजर आ रही होंगी तो वो मालूम कर सकते हैं। यू हैव टू आंसर। तो इसीलिए जो सीटी स्कैन नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना एंड देखिए नॉर्मल। अब अगर डबल रैंक से टी शर्ट बता रहे हैं तो उसमें आपको पूरी सी पैथोफिजियोलॉजी हर चीज़ पता होनी चाहिए। यही आगे जाके वो सवाल बनेंगे उसके अंदर। और फिर जाहिर है कि अगर नेजल पॉलिप है या फंगल साइनसाइटिस है जो भी है उसके हिसाब से उसकी मैनेजमेंट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। बाद में होता है कि हाउ यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, क्या तो अब आदमी शुरू करता है कि रूटीन में फिर वो पूरी कहानी सुनाना, सीबीसी, ईएसआर, फिर जो है वो रैंडम ब्लड शुगर, देन यूसीई, भाई ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ये कह दें कि रूटीन एंड द स्पेशलाइज्ड, ठीक है, वो फिर अपना सवाल खुद ही करेगा। अगर वो कहता है कि रूटीन में क्या कराओगे और द जनरल एनेस्थीसिया पर्पस और फिटनेस पर्पस जो भी कुछ है, तो आपको उसका आंसर करना है। और अगर वो कहता है आपने जो बता दें कि आई विल गो फॉर द रूटीन इन्वेस्टिगेशन एंड सम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन यू कैरी आउट, तो फिर आप भूल जाए रूटीन को। अब आप स्पेसिफिक पे आ जाए। अगर सीएसएफ का केस है तो जाहिर है उसमें ऑडियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, इमेजिंग स्टडीज, ये इसकी स्पेसिफिक है, केस टू केस पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसी तरीके से अगर प्लेन एक्सरे है तो उसमें कोई फाइंडिंग है, फॉरेन बॉडी चेस्ट अगर कोई है तो वो ऑब्वियस फाइंडिंग के साथ है, तो अकॉर्डिंग टू दैट केस उसकी मैनेजमेंट तक जाएंगे। तो और अगर कोई ऐसा केस है जैसे इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन है द क्रॉनिक स्टार्टिंग ईयर, जो सीएसएम विद इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन, तो डेफिनेटली फिर कॉम्प्लिकेशंस पे ही बात सामने होगी। एक्स्ट्राक्रैनियल, इंट्राक्रैनियल, उसमें हो सकता है कि किसी एक को फेशियल नर्व है तो उसकी मैनेजमेंट पे बात हो सकती है। लेकिन ये है कि टॉक्स के अंदर एग्जामिनर्स के पास भी बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है और डेफिनेटली जो बनाया जाता है वो टाइम फ्रेम को देखते हुए बनाया जाता है, तो वो यूजुअली 6-7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसमें इतना परेशान नहीं होगा कि बहुत ही कोई इन-डेप्थ नॉलेज आपकी लॉन्ग टेस्ट पे देखिए, ठीक है, उसमें फिर आपको सारी चीजें पूछी। अच्छा, इसमें जो एक तो इमेजिंग और ये सारी चीजें हो सकती है, फिर कोई ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन भी हो सकता है ना। स्पेसिमेन क्या हो सकता है, अब आजकल तो यूजुअली हम नहीं रखते हैं, वरना हमारे जमाने में मेरा अपना जाती एक आया था, सीए मैक्सिल आता था, तो मैक्सिल एक्टिनी का पूरा स्पेसिमेन रखा हुआ। इसी तरीके से टंग का स्पेसिमेन था, ठीक है। तो अब स्पेसिमेंस में बहुत सारी चीजें अब नहीं रखी जा रही क्योंकि और चीजें इसमें ऐड हो गई। और ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है, जैसे कोई प्रोसेसेस रखा हुआ है, ठीक है ना, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स रखी हुई होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो सकती है, और सो मैनी अदर्स। इसी तरीके से ग्रोमेट है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा कि रूटीन आप रूटीन केसेस में भी करते हैं और कुछ एंडोस्कोपिक सर्जरीज में भी करते हैं, प्लस में यूज करते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कोई रेजिडेंट उससे अवेयर ना, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, रेजिडेंट्स को एक्सपोजर ज़्यादा होता है,
اور وہاں پہ جو کہ انسٹرومنٹس روٹین میں یوز ہوتے ہیں. تو یہ ڈرابیک ان سینٹرز میں ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا معاملہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو جو اچھے بڑے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن باقی لوگ بھی تیاری کر کے آتے ہیں, وہ آپ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, نیٹ سے سرچ کرتے ہیں, تو ایوری بڈی نو کہ یہ کون سا انسٹرومنٹ ہے, اس کے کیا یوزز ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب انسٹرومنٹ کرنے جائے گا تو ظاہر سے انسٹرومنٹ کی بات نہیں ہوگی, انسٹرومنٹ جس ڈیزیز میں یوز ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس کے پیڑ میں نیپلر رکھا ہوا ہے تو آپ سے پھر روٹس کلوروسس پہ بات ہوگی, اس کے پریڈکٹنگ پہ بات ہوگی, اس کی انویسٹیگیشنس کی بات ہوگی, کمپلیکیشنس کی بات ہوگی, اسٹیپس کی بات ہوگی. اسی طریقے سے اگر بیک بائٹنگ مارسر رکھا ہوا ہے فیس میں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ سے فیس سے ریلیٹڈ اس کی کمپلیکیشنس بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور فیس کے اسٹیپس بھی پوچھے جا سکتے ہیں. فیس میں آپ کی جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ کو اس کا میتھڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. انسنٹ پروسیس آگے تک آپ جاتے ہیں تو وہ اسٹیپس پورے آپ کو یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کمپلیکیشنز آف فیس سرجریز بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کی کوئی ایک دو لائنوں میں مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو انسٹرومنٹس اسی طریقے سے اور تمام ہی ایریاز سے ریلیٹڈ انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. سنشن ایک ایلیمنٹ کرنٹ بھی ہو سکتا ہے, کاؤنسلر اسنیئر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوگا اسنیئر پہ کیا بات ہوگی, کاؤنسل پہ بات ہوگی, پیرینوائڈس پہ بات ہوگی, کمپلیکیشن پہ بات ہوگی. سب سے آخر میں کچھ اسٹیشن جو فوٹولوجی والا سیکشن ہوتا ہے اس میں فرض کریں کہ ہم نے 2 CSM کے گلو ایڈ لیے, اس کے بعد ہم آڈیولوجی کو بھی اس میں ڈالتے ہیں. بیکاز آڈیولوجی از اے پارٹ آف ایئر اور ہمیں جو ہے اس میں دیکھنا ہوگا. اس میں ایک اسٹیشن یقیناً ہوتا ہے. اور آڈیولوجی کے اندر آڈیوگرام ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈیوگرام ہو سکتے ہیں, گہرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے وہ پی ٹی اے, امپیڈنس, اسپیچ اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈرا, تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بالکل کلیئر, آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے. ڈرا کے اندر ہے تو آپ کو اس کی لیٹنسی پیریڈ, اس کی ساری جو ویوز ہیں, ویو 1 کی طرح 2 کی طرح بنتی ہے, 5 کی طرح بنتی ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. کتنے ملی سیکنڈس کا اس میں آتا ہے فائنڈنگس, تو اس کو ان ڈیپتھ دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اس میں اگر بہتر رکھا ہوگا تو کوئی سوال بھی نہیں ہے, سوائے اس پہ کہ آپ سے پوچھیں گے فائنڈنگس اور کہاں انڈیکیٹڈ ہے اور اس میں کیا فائنڈنگس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ پھر آپ سے ڈگری سیکھنا ہوگی. تو یہ 3-4 ایریاز ہیں جو آڈیولوجی کے اندر سیکشن میں کور ہو جاتے ہیں. تو فروٹس کے اندر آپ کے 15 اسٹیشن جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فیڈ بیک فارم بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو آپ کی کوئی آبزرویشن ہے ریگارڈنگ دا اسٹیشنس تو وہ ضرور آپ جو ہے وہ اپنے فیڈ بیک میں جو ہے فائنڈ آؤٹ کریں. بیکاز فیڈ بیک ہوتا ہے یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے. CPSP کے اندر جو فیڈ بیک فارم ہوتا ہے اس کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے فیڈ بیک فارم میں تو جو مینجمنٹ ہے وہ اس کا نوٹس بھی لیتی ہے اور اس کو پھر ہم لوگوں سے ایگزامنر سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی ایکس رے ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں کی ڈائگنوسس کی اور آپ کے 3-4 لوگوں نے وہی آبزرویشن دے دی ہے تو پھر ہم جائیں گے اس اسٹیشن کو ریچ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اس میں یا تو امپروومنٹ کریں گے یا اس کو آؤٹ کریں گے. تو فیڈ بیک فارم از ویری امپورٹنٹ. آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ آپ کا ضرور جو ہے نا وہ جانا چاہیے. تو یہ فرسٹ ڈے جو کورس ہو جاتا ہے اس کا میں نے جیسے بتایا کہ 60% اور مور یو کین پاس. اب اس کے اندر کلیکٹیو ہوتا ہے تو ہر اسٹیشن پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 6+ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ٹاپ ہو جاتا ہے تو جو لوگ پاس ہوتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سارے ہی شارٹ اور لانگ کیس میں اپیئر ہو جاتے تھے. لیکن اب تھوڑا سا پالیسی چینج ہے, نمبر آف اسٹوڈنٹس, تو جتنے لوگ
क्योंकि टॉक्स इज एसेंशियल पार्ट फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग केस। यानी अगर कोई टॉक्स में पास नहीं हुआ तो शॉर्ट और लॉन्ग में भी पास होगा तो पास नहीं होगा। लेकिन अगर टॉक्स में कोई पास हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप शॉर्ट और लॉन्ग केस में अप्लाई हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो टॉक्स में जो अब जो पॉलिसी है उसमें टॉक्स में जो पास होते हैं यूजुअली उनको सेकंड और थर्ड डे रखा जाता है। जो प्रीवियस वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो पहले अपियर हो चुके होते हैं जिनका टॉक्स पास होता है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो फर्स्ट डे यूजुअली सारे एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब टॉक्स का जब रिजल्ट आता है तो यू गो फॉर द नेक्स्ट डे। अब इसमें जितना भी एग्जाम है इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो अपीयरेंस है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग है, आपका एटीट्यूड, ठीक है, रिस्पॉन्स का तरीका, ये सब चीजें मैटर करती हैं। आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, मेल्स में वो आप नाइट लगा के जाएं, ठीक है, जो कार्ड है वो और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे डिस्प्ले पे होना चाहिए, ठीक है, यू कैन वियर द एप्रन एज वेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, एप्रन पहनने तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो आपकी घर की प्रिपरेशन है, जो आपने किस तरह से जाना है। और उसके बाद फिर जो है सबसे पहले यूजुअली शॉर्ट केसेस होते हैं और फिर लॉन्ग केस होता है, सॉरी लॉन्ग केस होता है देन शॉर्ट केस। लेकिन बाद में एग्जामिनर्स पहले शॉर्ट केस भी कर लेते हैं। ये जो वहाँ पे आप समझ लें कन्वीनियर ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो कन्वीनियर एग्जाम का होता है, वो सबसे कंसेंसस करके कर लेता है कि यूजुअली पहले लॉन्ग केस देन शॉर्ट केस। क्योंकि लॉन्ग केस में 2 राउंड्स होते हैं और 1 घंटे का पहला राउंड होता है और फिर दूसरा राउंड 1 घंटे का होता है। यानी कि जो पहला बैच है फर्स्ट तरह ए और बी बैचेस हैं, तो ए बैच अगर अपियर हो रहा है फॉर द लॉन्ग केस, उसके बाद बी बैच होगा तो उसको 1 घंटा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में मिलता है, ठीक है। तो अगर पहले लॉन्ग केस है तो आप फोकस करें अपनी पूरी तवानाई को, पूरे ज़हन को, अपनी तैयारी को। एक होता है ना कि जब हम लॉन्ग केस पे जा रहे होते हैं तो हमें उस तरीके से प्रिपेयर होना मेंटली प्रिपेयर कि मुझे लॉन्ग केस करना है, मुझे हिस्ट्री लेनी है, जल्दी से रिकॉल करें कि हिस्ट्री में क्या क्या पूछना चाहिए या क्या डेट होता है। तो आपको अगर 10 मिनट मिल रहे हैं तो यू कैन रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ठीक है ना। उसको फिर आप शॉर्ट केस जहन से निकाल लें, क्योंकि आपको फिर बाद में 1 घंटा मिलेगा तो उसमें जो है फिर आप शॉर्ट केस की तैयारी। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो पार्ट है उसको फोकस कर रहे हैं और उसी को फोकस करें, ठीक है। पूरे एग्जाम को अगर पहले दिन या पहले पार्ट में लेके गए तो आप पहला पार्ट खराब होने का इम्कान होता है ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू, ठीक है। तो जब आप शॉर्ट केस में जाते हैं तो उसमें लॉन्ग केस में जाते हैं, चलो पहले शॉर्ट केस आया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग केस और शॉर्ट केस या शॉर्ट केस एंड लॉन्ग केस, शॉर्ट केसेस जो होते हैं वो 4 केसेस होते हैं जो सारे कैंडिडेट्स को अपियर होना है इन 4 शॉर्ट केसेस हैविंग वेटेज ऑफ 10 मिनट्स ईच, यानी 40 मिनट का ये प्रोसेस होता है। इसमें चेंज ओवर टाइम भी शामिल होता है। तो ये 4 केसेस होते हैं वो उसमें सारे सिस्टम्स को हम मतलब इंक्लूड करते हैं, यानी ओटोलॉजी, राइनोलॉजी, एक कोई केस हम ओरल कैविटी या लारिंक्स से ले लेते हैं और एक हम जनरल कोई अगर कोई ऐसा है जिसमें थायराइड या सैलिवरी ग्लैंड या हेड एंड नेक से रिलेटेड तो उसको लेते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है इन 4 केसेस का। लेकिन इसमें जो होता है वो 10 मिनट्स में आपको, जब आप शॉर्ट केस स्टार्ट होगा तो एक बेल बजेगी, ठीक है। एक बेल बजेगी, आप अंदर जाएंगे और जब अंदर गए आप तो वहां से आपके 10 मिनट शुरू हो गए। तो आप अपनी किट को जल्दी से ऑर्गेनाइज करें और पेशेंट को, अच्छा शॉर्ट केसेस के अंदर कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती एक्सेप्ट ये कि आप उसको एक परमिशन पेशेंट से जरूर लेते हैं, इंट्रोडक्शन करके और परमिशन लेते हैं टू एग्जाम, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ है कि आप जब बैठेंगे तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शुजा हूँ और मैं आपके जाहिर है कि शॉर्ट केस में जो कमांड होगी आपकी वो स्पेसिफिक कमांड होगी, प्लीज एग्जामिन द राइट या प्लीज एग्जामिन द नोज, जहाँ की फाइंडिंग्स। तो आपने उसी पेशेंट को ये कहना, मैं आपका
नाक कान गले का मुआयना करूंगा। ये तो आपने पूरा कहना है क्योंकि नोज एग्जामिनेशन है, लेकिन बार बार आपको 12 साल का करा के ईयर में भी देखना होता है, तो आप उसको ये कहेगा कि मैं आपका नाक कान गले का मुआयना इजाजत है, वो कहेगा यस, देन एक्सपोज द पार्ट एंड quickly do the rest of it because you have 3.5 minutes to examine that part. अगर ईयर है फर्ज करें और 3.5 मिनट के अंदर आपने क्या क्या करना होगा बताइए। अब आप बताइए, आपने इतनी सारी चीजें आधा मिनट में गिनवाई हैं, जब करेंगे वो 3.5 मिनट में कैसे होगा पता है आपको? कैसे होगा? आपके रिफ्लेक्सेस जब तक डेवलप नहीं होंगे तो नहीं होंगे। आपने बिल्कुल सही बताया, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरीके से है कि फर्स्ट आप सी इंस्पेक्शन, देन कैलकुलेट करके देख लें टेंडरनेस तो नहीं, उसके बाद आप जो है उसके स्पेक्युलम एग्जामिनेशन, देन ओटोस्कोपी। ठीक है, ऑटोस्कोपी इज इम्पोर्टेंट, और उसके बाद फिर आप जाते हैं, अगर कोई डिस्चार्ज है तो आपको प्रोब यूज करनी है उस जगह पे, कोई डिस्चार्ज है स्मेल करना है, वो ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनेशन के नोट्स के वगैरह, तो उसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट करना होगा। शॉर्ट केस के अंदर आपको कोई डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या, ये सब टाइम्स आया है, ठीक है। आप डायरेक्ट जाएंगे, जो कमांड मिली उसके हिसाब से पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, उससे परमिशन लेंगे, एक्सपोज पार्ट, प्रॉपर लाइट इल्यूमिनेशन अच्छी होनी चाहिए, देन स्टार्ट। इसलिए एक सजेशन ये है कि जैसे एबीसी टेस्ट टेस्ट जो है टेक्स टू लॉन्ग, तो आप एग्जामिनर इधर पूछ लें कि इज इट ओके आई जस्ट स्किप दिस एबीसी टेस्ट, तो उसमें भी मेंशन हो जाएगी कि आपने भूले नहीं, आपको सही कि आपका टाइम वेस्ट किया, आपने वेबल्स और रेडीज किया, उसके बाद एबीसी को स्किप कर दिया, लेकिन इन्फॉर्म कर। ठीक, तो वेरी राइटली सेड बाय डॉक्टर उस्मान। तो ये सब चीज़ों को देखें। दूसरा ये है कि इसके अंदर जब आपको 10 मिनट्स में ये 3.5 मिनट आपको मिलते हैं, तो इसमें कोई बेल नहीं बजती है कि 3.5 मिनट हो गए, तो एवरीबॉडी शुड वेयर द रिस्ट वॉच, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत है, मैंने भी नहीं मानी, क्योंकि हमारी आदत है आजकल मोबाइल में हम टाइम देते होते हैं, लेकिन उस दिन आप हमें अपनी रिस्ट वॉच को यूज़ करना है, इसलिए यूज़ करना है, पल्स लेंगे आप, ठीक है, तो मिनट आपने देखना है तो आपको रिस्ट वॉच चाहिए, आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है तो उस समय रिस्ट वॉच जरूर पहने। 3.5 मिनट हो, तकरीबन कोशिश है कि 3.5 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएं। अगर नहीं होती हैं और एग्जामिनर आपको टेंशन देता है कि जी डॉक्टर साहब, तो आप बता दें, वो एक सवाल जैसे यूजुअली हम लोग कर लेते हैं कि आपका कोई चीज़ रह तो नहीं, फर्स्ट मैंने किसी ने फेशियल काम नहीं की, भूल गया या एंड के लिए रखे हो, टाइम नहीं था, ठीक है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके जहन में था या नहीं, तो हम एक चार्ट जरूर दे देते हैं कि डॉक्टर साहब और कुछ रह तो नहीं गया, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ट्यूनिंग प्रॉप टेस्ट है या फेशियल नाम, ईयर की बात है, ठीक है। अगर आपने कह दिया कि सर फेशियल नाम मेरी अभी मुझे करनी थी, तो वो फिर एग्जामिनर समझता है कि टाइम की वजह से ये नहीं किया, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये इसमें किया है। इसी तरीके से आइडियल है या दूसरी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे रिलेटेड, अगर वो रह जाती है, या वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्रॉम्प्ट कराने में और सारा पेशेंट को समझाने में, फिस्टुला टेस्ट एट दी एंड हम करते हैं, फर्स्ट अगर नहीं किया तो जो भी चीज़ रह जाती है वो आप पॉइंट आउट कर दें एग्जामिनर, ठीक है। अगर तो वो नहीं भी पूछ रहा है तो आप बता दें कि सर मैंने, क्योंकि आपके जहन में है लेकिन आप नहीं कर सके टाइम की वजह से, तो आप खुद ही बता दें कि सर मेरे टाइम की वजह से नहीं कर सका, लेकिन मैं ये करना, ठीक है। इसके बाद वो 10 मिनट्स का 2 एग्जामिनर्स को आपको फेस करना होता है। तो हमारे जमाने में 2 एग्जामिनर्स थे तो वही चारों स्टेशन पे मूव करते थे, अब नहीं है ऐसा, यानी आपका एक शॉर्ट केस हुआ, 2 एग्जामिनर्स को जो आपने फेस किया, तो नेक्स्ट 2 एग्जामिनर्स को आप फेस करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 एग्जामिनर्स को इन द थर्ड स्टेशन एंड नेक्स्ट 2 फोर्थ। अगर फर्स्ट करें आपका ऑटोलॉजी ईयर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो दूसरे एग्जामिनर को नहीं पता है, ये सीपीएसपी ने जो चेंज किया वो इसीलिए किया कि
हमारे जमाने में ये थोड़ा सा फीडबैक होता था कि अगर एक एग्जाम में एग्जाम बन जाता है, इसने ईयर सही नहीं किया या मूवी सही नहीं करेगा, ये ऐसे ही है, तो फिर एक जनरल कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो उसको नलीफाई करने के लिए ये सिस्टम चेंज किया गया और हर स्टेशन पे एग्जामिनर्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। 4% होता है, दो। अब नहीं पता कि पहला या तीसरा स्टेशन उसका अच्छा हुआ या नहीं, उसको तो कैंडिडेट को पता होता है। लेकिन कैंडिडेट ये समझे कि हर स्टेशन एक न्यू स्टेशन है, अगर पीछे आपका बहुत अच्छा हुआ है या बहुत खराब हुआ है, डजंट मैटर, वो नेक्स्ट स्टेशन आपका न्यू स्टेशन, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि इसके अंदर भी जो मार्किंग होती है शॉर्ट केसेस की, वो हर स्टेशन की होती है, लेकिन वो कलेक्टिवली देखा जाता है कि 5.5 है, 6, जो भी स्कोर है मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक कंप्यूटर बेस्ड स्कोरिंग होती है, तो वो लेनी होती है। और शॉर्ट केस को अलग पास करना होता है, लॉन्ग केस को भी अलग पास करना होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट केस को कलेक्टिव नहीं देखा जाता, सेपरेटली देखा जाता है। लेकिन अमंग द 4 शॉर्ट केसेस, उसमें अगर एक आध में थोड़ा सा फर्ज करें आपने 5.5 लिया और दूसरे में 6.2 ले लिया, तो थोड़ा सा बैलेंस तो होता है ना। इसलिए इसमें परेशान नहीं होइएगा अगर कोई एक स्टेशन में कोई मिस्टेक होती है, कोई चीज रह जाती है या डिस्कशन अच्छा नहीं होता, तो नेक्स्ट स्टेशन में आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके नए तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो डिस्कशन होता है यूजुअली 2 एग्जामिनर्स होते हैं, तो ये उनकी सवालियत है कि वो अच्छा मार्किंग दोनों में अलग अलग करनी होती है। लेकिन ये हो सकता है कि सवाल कोई 6 मिनट का या 7 मिनट का एक ही एग्जामिनर आपसे सारा सवाल पूछे। जैसे मैं और उसमें बैठे थे, आप ये आएंगे डॉक्टर साहब, हो सकता है मैं से पूरा 6 मिनट ले रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर आएंगे तो उस्मान से ले लेंगे, लेकिन मार्किंग हम दोनों ने अपनी अपनी शीट्स पे करनी है और हमने एक दूसरे से कोई डिस्कशन नहीं करना, हम अपनी फेयर मार्किंग करनी है। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, सीपीएसपी में फेयर सिस्टम है, और इसके अंदर जो है वो हर एक की अपनी जो असेसमेंट है बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट वो दिया जाता है। सवाल भी होते हैं कि ज़ाहिर है मैंने और मुझे जो करने हैं वो तकरीबन कॉमन ही होता है, हम ये नहीं करते हैं सवाल का, लेकिन ये नहीं है कोई पाबंदी, दूसरा एग्जामिनर भी इंटरवीन कर सकता है और एग्जामिनर 3-3 मिनट को भी डिवाइड कर सकता है कि मैं इनसे जो है वो डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल पूछूंगा, आप इनकी मैनेजमेंट पूछ लीजिएगा, तो इट्स ऑल डिपेंड ये वो एग्जामिनर्स किस तरीके से आपके एग्जाम को लेकर चल रहा है। लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ है कि 3.5 मिनट में आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन कर लेना है और आपका बाकी जो रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिस्कशन पे है। फिर एक बेल बजेगी, वो बेल बजेगी, इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन आपका कंप्लीट हो गया एंड यू हैव टू मूव क्विकली टू द नेक्स्ट स्टेशन। वो आप अपना पूरा टब्बर के साथ जो है वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचेंगे और हाँ, तो उसमें ये है कि वो मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है कि टाइमली जो है वो आप करें। तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 6 तो होना चाहिए कम से कम 60% एंड मोर। ठीक है, इससे कम होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसमें दोनों एंगल से देखा जाता है, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस। लेकिन शॉर्ट केस का एक पैरामीटर होता है, इससे कम वाला पास नहीं होता। कुछ लोग हमारे 0.1% से भी रहते हैं, यानी कि उन्होंने टॉस भी पास किया हुआ था, लॉन्ग केस भी किया हुआ था, लेकिन शॉर्ट केस में सेपरेटली अगर फर्ज करें कि 6 था और 5.9 दिया है तो पास नहीं होता। हालांकि उनका एग्रीगेट बहुत ऊपर है, लेकिन चूंकि सेक्शन में पास नहीं हुए तो इसलिए नहीं। तो इसको आपने बहुत ख्याल करना। तो तीनों जो टॉस का आपको होगा पास तो आप आएंगे शॉर्ट और लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट केस में सेपरेटली भी पास होना, और जब सेपरेटली आप पास होंगे तो जाहिर है कि एग्रीगेट में पास हो जाएंगे। कोई सवाल? सर जब बेल रिंग होगी तो वहाँ से हमारे एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा या जब एग्जामिनर को देखें वो 10 मिनट्स हम उसी तरह रखें, लेकिन यूजुअली जो हमारी स्टॉप वॉच जो मैनेज कर रहा होता है ये देख लेता है कि बच्चा अभी अंदर चला गया, 2-4 सेकंड के बाद स्टॉप वॉच पे शुरू कर देता है, 2-4 सेकंड से, तो वो टाइम तकरीबन उतना ही होता है, ज़्यादा से 10-15 सेकंड का फर्क होता है, यानी वो आपको मिल जाता है टाइम। क्योंकि वो जो स्टॉप वॉच पे शुरू करता है ना, वो देख लेता है कि सारे कमरे में लोग चले गए तो फिर वो स्टार्ट, उसके बाद 10 मिनट पहले की बेस्ट केस। कोई और सवाल शॉर्ट केस में? अच्छा, शॉर्ट केस के अंदर क्या क्या
होती ये चीज़ें ना, मतलब जो आपको सवाल किए जाएंगे, जो आपकी असेसमेंट होगी, तो वो किस तरीके से होगी। तो तो जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपका जो टाइम और मैनेजमेंट और किस तरीके से सवाल होंगे शॉर्ट केस में। अब इसकी जो जो एग्जामिनर हैं उनके पास सेपरेट कॉपीज होती हैं जिसमें वो मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी मार्किंग होती है उसमें जो एक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमको मार्क करना है, तो उसमें एक तो आपकी जो स्किल्स होती है एग्जामिनेशन की, जो आप 3.5 मिनट में कर रहे हैं, 3-3.5 मिनट में, उसके अब हर एक की अपने अपने वेटेज है, ठीक है। यानी कि अगर फर्ज करें ये आप 100 मार्क्स पर ले रहे हैं तो एग्जामिनेशन स्किल्स में हो सकता है 30 मार्क्स पड़ेगा, ठीक है, 35 मार्क्स पड़ेगा। इसी तरीके से डिस्कशन के अंदर करेक्ट फाइंडिंग्स विद लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, इसके हो सकता है 15 मार्क्स। ये आउट ऑफ 100 में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अमंग 100 मार्क्स इस सारी चीजें जो शॉर्ट केस है उसमें यही डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्किल्स पे अगर वो टिक कर देता है कि गुड या एडिक्वेट या जो भी उसका मार्किंग है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी वेटेज मिल जाएगी। उसमें ये नहीं होता कि अगर उस पर 10 मार्क्स है तो वो 8 देगा, 7 देगा, 6 देगा। वो देखेगा कि आप एडिक्वेट थे, सही थे, नहीं थे, या आपकी परफॉर्मेंस खराब है, ठीक है ना। वो मार्किंग करके उसके बाद वो इन ऑल जो है कंप्यूटर में जो वो शीट जाती है, तो इसलिए एग्जामिनर्स में वेरिएशंस भी होती हैं। हर हर जो पॉइंट है, चाहे वो डिस्कशन का हो, जस्टिफाई डायग्नोसिस का है या इन्वेस्टिगेशंस का प्रॉब्लम है, तो जो जैसा पिक करेगा उसी तरीके से आपकी मार्किंग कंप्यूटर में जाएगी और फिर उसका एक अपना एक प्रोग्राम है, सिस्टम है, उसके तहत जो है वो मार्किंग जैसे। तो अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपने एडिक्वेट जवाब दिए, टू द पॉइंट दिए, सही जवाब दिए, तो आपकी फिर आपको सिस्टम ऐसा है कि इसमें आप कहीं पे भी बायसनेस का एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई पसंद नापसंद का एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। ये एग्जामिनर जो स्ट्रक्चर्ड है, आपको जो टेक करेगा उसमें फुल मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा डिस्कशन जो होगा उसमें सबसे पहले एग्जामिनर जो शॉर्ट केस में वो फाइंडिंग्स पे बात करेगा, और आपने जो फाइंडिंग बताई उसकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन वो आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपने जो डायग्नोसिस उसमें बताई, डायरेक्ट फाइंडिंग्स बताएंगे और फिर सबसे पहले सवाल होगा कि डायग्नोसिस क्या है आपकी, ठीक है। आप ध्यान रखें ये 6 मिनट्स के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, 6.5 मिनट, तो उसमें डायग्नोसिस की जस्टिफिकेशन पूछ रही है, राइट। इसी तरीके से फिर उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पूरी कहानी नहीं होगी, वेरी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की बात होगी, उसमें एक दो सवाल जरूर होंगे, ठीक है। कि आपने सीटी स्कैन किया, व्हाई नॉट एमआरआई, तो यू हैव टू जस्टिफाई व्हाटएवर यू ऑर्डर फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर एंजियोफाइब्रोमा सस्पेक्टेड है तो बायोप्सी हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे तो उसको पूछ सकता है क्यों नहीं करेंगे, तो आपको पता ही है, हर एक को पता है कि क्यों नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन देनी है अगर कोई ऑर्डर कर रहे हैं या कोई चीज नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद वो मैनेजमेंट प्लान पे बात करेगा। मैनेजमेंट प्लान क्या होगा कि जाहिर है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं तो आपने मैनेजमेंट में दोनों बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर सर्जिकल है तो वो तो फिर उसमें एक लंबी डिबेट है, लेकिन ये डिबेट भी विद इन टाइम फ्रेम की है, और उसमें बहुत ज्यादा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कीजिएगा। अगर फर्ज करें टंग में लीजन है और T2 लीजन है, ठीक है, और फर्स्ट करें लेवल 1 2 पे जो है वो नोट है,
सिनेरियो में उसने बता दिया कि डॉक्टर साहब ये इसका है, तो आपकी क्या मैनेजमेंट प्लान होगी बताइए डॉक्टर साहब। वाइड लोकल एक्सटेंशन और टाइम शेयर है T2 स्टेज 3 हो गया ना, नेट मोड आगे तो and 1 स्टेज 3 हो गया तो वाइड लोकल एक्सीजन प्लस नेट डायसेक्शन हो गया। That is कौन सी नेट सर वाइड डायसेक्शन लोकल एक्सटेंशन में सेम ये पेमेंट ऑफ होगा सेम मार्जिन का। अब उसका सवाल क्या होगा, सवाल क्या होगा, व्हाट इज द सेम मार्जिन इन द टर्म्स? any possibility plus 45 that is the नहीं सर 1 सेकंड मुझे 1.5 सेकंड T2 है तो आपका ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा, 2 to 4 होगा, So any close 2 to 4 सेंटीमीटर होगा, 2.5 भी हो सकता है ना, यस सर 2.5 होगा और उसमें आप सेफ मार्जिन कितना लेंगे इतना, सर 1.5 2.5 1.5 makes 4, तो अभी कम तो मिलेंगे, तो why not डॉक्टर साहब ने जो कहा कि रनिंग ग्लोसेक्टमी प्लस नाइट डिसेक्शन, फिर बात होगी कि अच्छा N2 पे एक मोड है, N1 है, ठीक है, जैसे नेटवर्क मोबाइल सब कुछ है, और इसको क्या करेंगे, तो फिर उस पे जितने भी टाइप्स ऑफ नाइट डिसेक्शन हैं अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट जो होगा वो आपको जवाब। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने बुक की नॉलेज को नहीं अप्लाई करना है, बल्कि उस पेशेंट के लिए उस बुक की नॉलेज का एक्सट्रैक्ट पेश करना, समझ गए? बिकॉज इसमें लंबी डिबेट नहीं हो सकती, टाइम ही नहीं, वो भी चाहता है कि आप टू द पॉइंट बात करें और आपको भी टू द पॉइंट बात करें। इसी तरीके से एक कॉलम वहां पे होता है रीसेंट एडवांसेस। रीसेंट एडवांसेस उस एरिया के अंदर कोई है तो वो आपसे पूछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से इट्स मेक ऑल द असेसमेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट केसेस। अब जैसे अगर ईयर के अंदर तो क्या शॉर्ट केसेस हो सकते हैं यूजुअली? ये मैंने थोड़ी सी ऐसी रिकॉल किया था, तो जैसे इसमें अगर फर्स्ट करें कोई ब्लू ईयर का पेशेंट है, वो हो सकता है क्रॉनिक स्पोरेटिक ओटाइटिस मीडिया विद और विदाउट कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ड्राई ऑपरेशंस हो सकती हैं, ठीक है ना? इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ईयर की डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं, एट्रीजिया है जैसे, ठीक है ना, या कोई कॉलीफ्लावर है ईयर का, या कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी अगर प्री ऑरिकुलर साइनस का कोई पेशेंट हो सकता है, तो ये वो सारे केसेस हैं जो कि डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है इसके अंदर, तो ये सब ईयर से रिलेटेड शॉर्ट केस में हो सकता है। इसके अलावा अगर नोट्स है तो उसमें सिंपल डीएनएस की डिपेंडिंग के कितने पेशेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर जो भी कोई पेशेंट होगा तो वो फिर डेफिनेट फाइंडिंग्स के साथ होगा, डेफिनेट डायग्नोसिस के साथ, जैसे डीएनएस विद एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी हो सकता है। अब उस पर जो बात होगी तो जाहिर है कि सेक्टोराइनोप्लास्टी है आगे चलेगी बात, ठीक है ना? तो जो शॉर्ट केस होगा उसमें भी डेफिनेट होगी। फिर इसके अलावा जैसे लेजर पॉलिप्स का बहुत होता है तो यूजुअली शॉर्ट केसेस के अंदर होता है, बाद में स्किन लीजन्स पे लेजर सेल कार्सिनोमा अगर वो अवेलेबल है उस दिन, तो ऐसा पेशेंट के लिए सब केसेस हो सकते हैं शॉर्ट केसेस। इसके अलावा थ्रोट के अंदर कोई ग्रैन्युला, ठीक है, क्रॉनिक अगर कोई नहीं मिल रहा तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस भी डिस्कशन में आ सकती है। हालांकि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस थोड़ी सिंपल सी लगती है लेकिन इसमें एक अच्छा डिस्कशन होता है, ठीक है ना? इसके अलावा जो है वो टंग लीजन्स हो सकते हैं, चीक ओरल कैविटी के कोई भी लीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, सर्विकस फाइब्रोसिस हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो ल्यूकोप्लेकिया या इस तरह का केस हो सकता है, ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, टंग पे, चीक पे, पैलेट पे, कहीं पे भी कोई लीजन हो सकता है, ये शॉर्ट केस में आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइरोपिक ग्लैंड ट्यूमर्स में से शॉर्ट केस के अंदर कैरोटिड ट्यूमर, सबमैंडिबुलर ट्यूमर, ठीक है, कोई भी हो सकता है। बिनाइन नेक डिजीजेस के अंदर अभी डॉक्टर अकबर पास पूरा तफसील से आपको सारे ये बताएंगे, तो बिनाइन नेक मासेस या डिजीज नेक की वो यूजुअली शॉर्ट केस में आ सकती है, जैसे कि ब्रेकियल फिस्टुला या ब्रेकियल सिस या कोई भी हो सकती है इसके अंदर, लेटरल नेक स्वेलिंग्स में से आ सकती है, मिडलाइन नेक स्वेलिंग्स में से आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से थायराइड है और अपर प्राइमरी अगर कोई है, नेक नोड है, तो ये सारे वो एरियाज हैं जो कि शॉर्ट केस के अंदर हो सकते हैं। लैरिंक्स के अंदर यूजुअली अगर फर्स्ट करें वोकल नोड्यूल्स हैं तो वो केसेस यूजुअली रखे जाते हैं, फिर
बड़ी डेफिनेट फाइंडिंग्स के साथ होते हैं, तो आपको ज़ाहिर है कि मास्टर होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेंग्वेज। तो हम लोग इतना एफओडीएल यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो आइडियल पे नहीं होती, वहाँ पे तो फ्लेक्सिबल नहीं है, वहाँ पे पेशेंट है होर्सनेस के साथ है, डेफिनेट डायग्नोसिस के साथ है। तो जब आप लोग एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर्स पीछे आके आपको जज भी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ये बैक ऑफ द माइंड होता है कि पेशेंट शायद इधर देखा हुआ होगा, डायग्नोसिस भी पता होगी, तो बस ये फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं कर रहे। तो जब जैसे अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो उसमें प्रोब टेस्ट आप करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, तो वो आगे पीछे देखेंगे कि आपने इस तरह से परफॉर्म किया, राइट। इसी तरीके से आईडीएल है या पोस्टर एंडोस्कोपी आप कर रहे हैं, तो वो आपके बिल्कुल ऐसे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे कंधे के पीछे से झुक के देखेगा कि आपको स्ट्रक्चर नजर भी आ रहे हैं जो आपने आगे बताने हैं। तो वहाँ ये जो होता है ना कि हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और विदाउट एनी फाइंडिंग, अगर आपको फाइंडिंग देखनी है तो आपको मेथड पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो लैरिंजियल वैल्व नोड्यूल कोई भी हो सकती है चीज, इसके अंदर ग्रोथ हो सकती है, इसकी शॉर्ट केस में भी हो सकती है, तो ये सारी चीज। अच्छा, जब शॉर्ट केस कंप्लीट हो गया आपका तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, अगर दूसरा जो मैं लॉन्ग केस की बात कर रहा हूँ। जब आपका लॉन्ग केस होता है, पहले यूजुअली ये स्टैंडर्ड है हमारा कि पहले लॉन्ग केस, तो वो 2 बैचेस में 2 घंटे होता है, तो 1 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है और फिर शॉर्ट केसेस होते हैं। यहाँ डिस्कशन में मैंने पहले शॉर्ट केस बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट केस होते हैं तो अब वो डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंट जो होता है एग्जामिनेशन का, वो कोई भी चीज़ पहले कर सकता है, लेकिन एक बैच को दूसरे बैच की परफॉर्मेंस के दौरान में टाइम मिल जाता है टू री ऑर्गेनाइज, चाहे वो लॉन्ग केस हो चाहे वो शॉर्ट केस। शॉर्ट केस होगा तो 40 मिनट्स मिलेंगे, लॉन्ग केस होगा तो 1 आवर मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग केस में ये होता है कि आपको एक जो है वो केस मिलेगा। अच्छा, ये जो केस होता है ये एग्जामिनर्स अपनी चॉइस से ले लेते हैं, जो हमारे जितने पेशेंट्स बैठे होते हैं उनमें से वो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा केस मिलता है और किस तरह का, लेकिन यूजुअली पिछली दफा की जैसे फीडबैक्स होते हैं पिछले इसमें, तो कोशिश की होती है कि लैंग्वेज बैरियर ना हो। लॉन्ग केस के अंदर क्योंकि आपका इंटरेक्शन है पेशेंट के साथ आधे घंटे का, तो कोऑपरेटिव हो, ठीक है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं, लैंग्वेज बैरियर ना हो, ठीक है ना, और पेशेंट कोऑपरेटिव हो, और दूसरा ये कि बिल्कुल ऑब्वियस है फाइंडिंग के साथ। अच्छा, ये जितने भी शॉर्ट केसेस होते हैं, लॉन्ग केसेस होते हैं, एग्जामिनर्स पहले वो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, हमसे फाइल नहीं पढ़ते हैं, हम जो है वो सारे एग्जामिनेशन 2-4-5 मिनट में कर लेते हैं। तो जैसे ईयर का है ना, तो हम देख लेते हैं उसमें ऑटोस्कोपी करके देख लेते हैं कि फाइंडिंग क्या है। आपने कहा कि पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन है, पता चला उसकी नहीं थी, ठीक है ना, उसकी जो वो एंटीरियर इंफीरियर थी, तो फिर हम चैलेंज करेंगे, फिर हम आपको सही करेंगे। तो इसीलिए आप ये नहीं समझिएगा कि आप एग्जामिनर को डिसीव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पूरा थॉरोली देख चुका होगा, उसके पास केस फाइल भी होती है, एक्सरेज सीटी स्कैन्स भी होते हैं, बायोप्सी रिपोर्ट भी होती है, इसके अलावा उसके पास जो है वो फाइंडिंग्स सारी उसने देखी हुई होती हैं, तो यू कैन नॉट डिसीव। अब इसके अंदर एक पेशेंट है, हाफ एन आवर आपका है, हाफ एन आवर जो है वो एग्जाम, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को कॉल किया, आप अपने स्टेशन के बाहर खड़े हो गए, बेल बजेगी, और बेल बजने के बाद आप जो है वो अंदर जाएंगे, फिर आपको जो कमांड दी जाएगी, डॉक्टर साहब दिस इज योर लॉन्ग केस, नाउ प्रोसीड, ठीक है। अब आपको जो आपने पूरी तैयारी की हुई है वो उसका अप्लाई करने का टाइम, आप अपना सामान सेट करें, आप पेशेंट से जो है, अब यहाँ पे जो है वो पेशेंट से आपने इंटरेक्शन भी करना है, शॉर्ट केस में मुख्तसर सा करना होगा परमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है, पेशेंट का नाम भी पूछना है, एज भी पूछनी है, ऑक्यूपेशन भी पूछना है, उसकी रेजिडेंस भी पूछनी है, जो सारे पॉइंट्स हैं हिस्ट्री टेकिंग के अंदर और सारे, तो आपका एक क्लोज इंटरेक्शन होगा उसके साथ। तो अपना स्माइल मतलब बहुत ही रिलैक्स फेस के साथ
पेशेंट जो होते हैं बाद दफा थोड़ा सा इरिटेटिव होते हैं, उनको लाइन पे लाना जो है वो आपका काम है। बाद दफा वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि आधा घंटा है तो जो सेफ टाइम है हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन में वो 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, जो बहुत सेफ टाइम है। यानी 10 मिनट्स में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट और 20 मिनट्स में कंप्लीट एग्जामिनेशन। लेकिन 10 से वो 12 मिनट भी हो सकते हैं, उधर पे वो 20 से 18 मिनट रह जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हिस्ट्री में आपने फर्स्ट करें 20 मिनट लगा दिए तो फिर आप बहुत खतरा है, क्योंकि शायद आप 10 मिनट्स में कंप्लीट ना कर सकें। और ये 20 मिनट्स वाले जो होते हैं इसके बाद कैंडिडेट का भी फॉल्ट होता है, कैंडिडेट फैक्टर भी है और पेशेंट फैक्टर भी होता है। तो इसमें जो होता है वो एग्जामिनर्स जो होते हैं वो एक दफा आपको कमांड देके साइलेंट है, लेकिन दे आर क्लोजली वॉचिंग यू कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। एक ब्लैंक शीट पे हम नोट करते रहते हैं, आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, हाँ ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। फर्स्ट टाइम आपने शुरू में नहीं किया था, बाद में कर दिया तो हम उसको करने वाले में टिक कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो आधा घंटा है उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सारी टाइम मैनेजमेंट आपके अपने ऊपर। जिसने हिस्ट्री के अंदर बहुत टाइम लगा दिया तो वो यूजुअली प्रॉब्लम में आता है, ये एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो सेपरेट मार्किंग होती है इसमें फिर हिस्ट्री के अलावा तो ये सारे अभी आगे बताता हूँ मैं, तो जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे फिल इन होने हैं। हिस्ट्री के अंदर फोकस होना चाहिए, और हिस्ट्री इस वक्त पूरे डिटेल में बात करने का टाइम नहीं है, डॉक्टर अकबर भी वेट कर रहे हैं। इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर तमाम वो पॉइंट्स के करिए। अच्छा बस ठीक। अब जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, राइट, ये तो सबसे पहले तो उसका डेटा होना पेशेंट का, क्योंकि ऑक्यूपेशन बस चीज़ों में बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी, बस पेशेंट्स में उसकी रेजिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बस डिजीज के अंदर उसकी एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा है बेसिक डेटा वो तो आपने लेना है, इसको नोट भी करना है, आपको पेपर मिल जाएगा, तो आपने जो पूरी एक कहानी नहीं लिखनी, लेकिन सेलेक्ट फीचर्स को नोट डाउन करना है। तो नाम तो शुरू ही आपने नाम से करना है, तो नाम जरूर लिखना है, इसका एज है, ऑक्यूपेशन, उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जाहिर जो चीज़ अर्लियर है तो वो पहले लिखी जाएगी, और जो बाद में है वो यानी की चीज की फीचर जो है वो पहले आएगा, उसका ड्यूरेशन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रेस्ट अब किस तरह से होगा कि पेशेंट से आप पूछेंगे कि बाबा आप जो दाखिल हुए वो ओपीडी से हुए, इमरजेंसी से हुए, ये एक सवाल हो सकता है। अच्छा आप आएंगे किस तकलीफ के साथ आए, ठीक है। अब जो भी चीज़ बताएगा कि किस तकलीफ के साथ आए थे, तो अच्छा ये आपको जो प्रॉब्लम है ये कब से है, तो इसमें जो है वो की फीचर, ड्यूरेशन, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में इंपॉर्टेंट है। अगर एक से ज्यादा है उसको, जैसे डिस्चार्जिंग है लेकिन डेफरेंस भी है, तो आप उससे पूछेंगे कि अच्छा आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेशेंट डिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, समटाइम्स खूब डिट्रैक्ट करते हैं, एक से ज्यादा कंप्लीट बताता है, असल कंप्लीट बताने की बजाय ना वो दूसरी बात होता है। हाँ, तो यही तो आपकी गाली में भी नजर है। तो पेशेंट को भी आप तैयार करके भेजा करें कि आपने मोटी मोटी दो चीज कंप्लीट बता नहीं वो हम नहीं कर सकते, हम लोग उसी हमारे ज़हन में वही दो चीजें होती हैं, ये डिस्चार्ज और हेयरिंग लॉस, हम इसी के मतलब सवाल करते हैं। तो देखिए इसमें पेशेंट होता है ना, देखिए जो फर्स्ट कंप्लेन होती है ना पेशेंट की, वो तो बिल्कुल सही बताता है, दूसरी को छुपा जाता है। जब बात होता है तो डायग्नोसिस ही बता देते हैं, डायग्नोसिस तो जैसे कि तो उसमें ये पता है ना कहां से मेरे रिश्ता वाला बेसिकली ये पेशेंट हो जाता है एंजियोग्राफी के देखिए वो वो असल में दूसरे और तीसरे नहीं बताता है, पहले दिन तो वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जहन में अगर वार्ड में एक ही पेशेंट को बहुत दिखा है और फिर वही आ गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और वो रिगार्डिंग आइडियोलॉजी डायग्नोसिस पॉजिटिव होता है, हमारे मेरे पास एक शॉर्ट केस में आया था कि ईयर की एब्नॉर्मलिटी थी, कंजेनाइटिस और दूसरा खातून भी, अब हम वार्ड में इतनी दफा देख चुके थे, वही आ गई मेरे पास। अब जैसे ही मैं बैठा तो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, बर्बाद है। तो फिर जो है ना वो एग्जामिनर किसी काम से 2 मिनट के लिए इधर उधर हुए थे, चुप करके बैठो, कोई जरूरत नहीं, तो मुझे नहीं जानती हो।
मैं तो नहीं जानता। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त पेशेंट जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अगर देखे हो तो नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर, तो इसमें जो है वो बात हो रही थी लॉन्ग केस के अंदर जब आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, देन हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने उस मेन कंप्लेंट्स को तो सुनना ही है, लेकिन अदर कंप्लेंट्स को भी पूछना है और अगर कुछ है तो उसको नोट करके रखना, ठीक है। कुछ सवाल ये होते हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस भी होते हैं रिलेटेड, जैसे अगर फर्स्ट करें डिस्चार्जिंग किया है लेकिन आपने उसको नोज की कंप्लेंट भी पूछनी है, थ्रोट की भी पूछनी है, ठीक है ना। ईयर से रिलेटेड तो सब कुछ पूछना है, जो 4-5 चीजें हैं, डिस्चार्ज है, उसके बाद डेफनेस है, टिनाइटिस है, ठीक है, वर्टाइगो है, तो ये सारी चीजें पूछनी है। लेकिन ये इसके अलावा अदर कंप्लेंट फिर कुछ जनरल क्वेश्चन भी लॉन्ग केस के अंदर पूछे जाएंगे, लाइक फीवर, ठीक है, नाइट स्वेट्स है, दूसरा उसके अलावा क्या है, एनोरेक्सिया है। अगर फर्स्ट करें कोई सीए का पेशेंट है तो बहुत सारी चीजें हैं वेट लॉस की और ये सारी चीजें इसकी आती हैं, तो वो सारी अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू नीड आपको सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स तक महदूद नहीं हो रहा है, बल्कि अदर क्वेश्चंस भी अपनी हिस्ट्री के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे आप, जब पेशेंट एग्जामिनर पूछेगा आपसे नाउ यू प्रेजेंट योर केस, तो उसमें जो नॉर्मल चीजें हैं या नेगेटिव हैं उनको आप साइड पर रखें, जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं उन्हीं को आप हाईलाइट करें, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें होना टाइम हो सकता है और वो पूरी डिटेल, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपने क्या सवाल किए और क्या सवाल नहीं किए, वो नोट कर रहा होता है। तो आप उसको रिसीव नहीं कर सकते कि आपने नहीं पूछा और बाद में अगर आप उसको रिसीव करने की कोशिश करेंगे, अब उसने हाईलाइट कर दिया कब से आपने तो ये सवाल पूछेंगे तो ऐसे वेट लॉस का, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कहते मैंने पूछा था, क्योंकि 2 एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने शीट पे लिखा हुआ है कि इसने नहीं पूछा जो पूछना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पकड़ा जाता है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं पकड़ा जाता। तो आपने उसको मिस नहीं करना, अकॉर्डिंग टू द केस आपने सारी चीज़ें उससे पूछना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसके बाद में वो आगे चलते हैं तो फिर वो फैमिली हिस्ट्री भी इसमें लेनी है आपने, ड्रग हिस्ट्री, ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, एलर्जीज पूछनी है, राइट, सोशो इकोनॉमिक पूछना है, फैमिली हिस्ट्री है, पास्ट सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी कंप्राइजेस ऑफ योर हिस्ट्री। तो लॉन्ग केस के अंदर आपने कोई भी एंगल छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सब काम आपने विद इन 10 to 12 मिनट्स करना है। अगर बियॉन्ड 10-12 मिनट जाएंगे तो आप उतने ही परेशानी करते हैं, बिकॉज फिर एग्जामिनेशन टाइम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, अब फर्स्ट करें कि लैरिंक्स की हिस्ट्री है, सी लैरिंक्स का केस है, अब उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि होर्सनेस के अलावा और क्या क्या हो सकता है, डिस्फेजिया है, ठीक है, होर्सनेस है और क्या हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स को उससे क्वेश्चन करना है, वो नहीं बताएगा लेकिन आपने पूछना है, क्योंकि वो उस डिजीज से क्लोज अप्रॉक्सिमेटी में जो भी चीजें आ सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपने इन डिटेल पूछना है, ठीक है। अब जाहिर है कोई चीज अगर डिटेल में पूछते हैं और अगर वो कहता है हाँ मुझे ये है, तो उसके लिए पूरी कंप्लीट जो है वो डिटेल्स लेनी है, फॉर हाउ लॉन्ग, इंटरमिटेंट और परमानेंट और जो भी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, रिलीविंग एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपने। So sometimes पेशेंट से पूछते हैं ये भी है, वो कौन जवाब देता है हाँ ये भी है, ये चीज उसका क्या नहीं, सब चीजों का तो जवाब नहीं देगा, लेकिन ये कि कुछ सवाल ऐसे थोड़ा सा फोकस करें। अब जैसे आपसे हाँ वो कभी-कभी होता है स्लाइड में आते हैं। अब जैसे किसी को अगर आप ईयर में फर्स्ट का प्रॉब्लम है तो आप वर्टाइगो पूछेंगे, वो कहेगा हाँ कभी कभी होता है, तो आप उसकी डिटेल पूछेंगे, ऐसा होता है तो कब होता है, उसके लिए एग्रीवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर्स कैसे वो मैनेज होता है, कितनी देर करते हैं वर्टाइगो, क्या फील होता है आपको, किस तरह से, वो सारे जो क्वेश्चन थे वो लंबी डिटेल है। तो वर्टाइगो भी है लेकिन बस नहीं, मतलब आपने 2-3 सवाल करने हैं, अगर उसने यस कहा है तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट एरिया। डेफनेस है तो कब से है, रिलीव होती है नहीं होती है, परमानेंट है नहीं है, यूनिलैटरल है बायलैटरल है, ठीक है ना, वो नोटिस
آپ نے کس طرح سے محسوس کیا, کب محسوس کیا, ٹھیک ہے, دوسروں نے بتایا آپ کو, آپ نے خود محسوس کیا, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہسٹری کے اندر یہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ کوشچنس کو آپ کو آرگنائز کرنا ہے, یہ کہ آپ کی پچھلی تمام ڈیوریشن کی پریکٹس پہ ڈپینڈ ہے. کیونکہ دیکھیں نا لانگ کیسز کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوں گے, میں نے اس کی بھی ڈیٹیل لکھی ہے کہ جیسے اسٹارٹنگ ایئر اگر ہے کرونک سیبریٹک اوٹائٹس میڈیا, اس میں کمپلیکیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, سمپل ہو سکتا ہے, پالپس کے ساتھ اور پالپ یا گرینولیشن ٹیشوز ہو سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے علاوہ اگر نیزل پالپ ہے, فرض کریں گروتھ میکسل سی اگر ہے, پالپ پہ ہے, کہیں پہ بھی ہے, اینجیوفائبروما ہے, نیوز پیرالائزر سائنس ٹیومرز ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو ہسٹری کے اندر بہت ساری چیزیں کامن ہی ہیں نا اس کے اندر جو کوشچنس کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر چیک اورل کیویٹی کے اندر ہے تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, السر ہو سکتے ہیں, سی اے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب سی اے نام کا ہے, سارے اورل کیویٹی ڈسٹریبیوشن میں آپ جا سکتے ہیں, ٹنگ پہ ہے, گلے پہ ہے, چیک پہ ہے, گمس پہ, فلور پہ, یہیں پہ بھی. لیکن ہسٹری کے اندر تو تقریباً سملر کوشچنس ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سیلیبری گلینڈ ٹیومرز ہیں, پیروٹیڈ, سبمینڈیبولر, تو وہ اس میں کیا ہسٹری کے اندر آپ نے لینا ہے, اس میں ریڈیشن ایکسپوجر پر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ, بلیک ماس سے روکٹ پرائمری, یہ سارے کیسز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لانگ کیسز میں ہے. تھائرائڈ بہت شوق سے لوگ رکھتے ہیں, تھائرائڈ, ٹھیک ہے, گوئٹر, ملٹی نوڈولر بھی ہو سکتا ہے, سنگل نوڈ کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہر آگے جا کے اس کی مینجمنٹ میں بہت زیادہ بات ہوگی, لیکن جو ایگزامینیشن ہے یا ہسٹری ہے تھائرائڈ کی, وہ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں پوچھیں گے, چاہے وہ سمپل سا لگ رہا ہے, ملٹی نوڈولر, ہیوج لگ رہا ہے, اسمال لگ رہا ہے, لیکن سوالات تو سارے ہوں گے تھائرائڈ کے. بتائیں اور سب تھائرائڈ میں آپ کیا کوشچنس کریں ہسٹری میں. سر سویلنگ کا پیشنٹ نے بتایا, آپ میں سے کوئی دوسرا بھی اس میں آپ کی انپٹ دے سکتے ہیں, سر سب سے پہلے لیکن مت کرنا ایسا. پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ میرے سے آپ کس تکلیف کے ساتھ ہیں. پیشنٹ مجھے بتا رہے تھے کہ سر مجھے نا گلٹی بنی ہوئی ہے, اب میں گلٹی کو فوکس کرنا چاہتا ہوں, گلٹی کے طریقے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. یہ گلٹی کتنے ایسے ہیں, یہ گلٹی کیسے محسوس ہوئی, اچانک آپ کو پتہ چلی اس کو گلٹی کی یا ایسے ذرا فنگر لگا کے بتائیے گلٹی کہاں سے اسٹارٹ ہے, کس جگہ سے اسٹارٹ ہے. جب گلٹی آپ کو محسوس ہوئی فرسٹ ٹائم نرم تھی کہ سخت, جب گلٹی محسوس ہوئی اس کا سائز کتنا تھا, مٹر کے دانے کی طرح تھی یا فروٹ کی طرح تھی, کیسے تھی, کیا اس کے سائز میں پتلی کی اضافہ ہو رہا ہے یا یہی پہ کیا اس لیے آپ درد محسوس کرتے ہیں. اضافہ ہو رہا ہے, ایک سوال ہے آپ کا اسی سے ریلیٹڈ, یہ جو اضافہ ہو رہا ہے کتنے سال میں ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے یا ایبرپٹ چینجز, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر فرض کریں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اس کے فیکٹرز ہیں نیوپلازمس کے, اس میں ایبرپٹ انکریز ان دا سائز از ون آف, تو آپ نے اسی وقت سائز میں انکریز ہے تو پھر ڈیوریشن میں ہو رہا ہے. باقی مجھے درد یا سخت باقی اس میں آپ پین محسوس کرتے ہیں, ٹیمپریچر رہتا ہے, کیا اس گلٹی کے علاوہ جسم میں اور جگہ بھی گلٹی ہے, پگوں میں گلٹی, باڈی میں کسی اور پارٹ میں گلٹی ہے, کیا اس گلٹی کا تعلق بھی آپ کے گلا خراب ہو سکتی ہے, فرق پڑ جاتا ہے, کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا اس دوران, کوئی میڈیسن استعمال کی ہے, کوئی علاج سے فاقہ ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب نے کوئی انویسٹیگیشن ایڈوائس کی ہے, اور اس پر آپ کو کوئی شوگر ٹیسٹ کروایا ہو, الٹراساؤنڈ کروایا ہو, ٹھیک ہے, یا خون کا ٹیسٹ کروایا ہو, ایسا کوئی ٹیسٹ کروایا ہے, یہ سر سلنگ سے. اس کے بعد میں ایسا آؤں گا اگلا اسٹیپ کہ جلدی ختم. اس کے بعد سے آگے آ گیا کہ رات کو سوتے آپ کو دقت تو محسوس نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے میں تو چاہ رہا تھا کہ سب کو چانس مل جائے, اس لیے نہیں کہہ رہا تھا, ویسے کوئی. اچھا, اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں دقت نہیں ہوتی, دشواری تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, سانس لیتے سیٹنگ کی آواز تو نہیں آتی. اس کے بعد میں اس کے اسپیشلی ہائپوتھائرائزم آپ کو موسم کون سا اچھا لگتا ہے, گرمی کا موسم یا سردی کا موسم. سردی کے موسم میں ہاتھ پہ اس کے بعد سر میں آ رہا ہوں اس کی کازز کی طرف, کازز میں آ گیا کوئی, یہ سب 12 منٹ میں کرنا کوئی میں پوچھ رہا تھا کہ 12 منٹ میں کیسے چوٹ تو لگی تھی, کوئی آپریشن تو نہیں کروایا تھا, فیملی کے اندر کسی کو گلٹ کی بیماری تو نہیں ہے.
बात देखिए आप जिस एरिया से आए वहाँ पर पीरियड का मसला तो नहीं है, घर में कौन सी सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा सब्जी का फिर आयोडीन के मुतालिक हो गया, आयोडीन की चले आप कुछ ये भी कहना चाहिए स्पेसिफिक सॉइल, ठीक है, उससे रिलेटेड, और उसके बाद जो है फिर उससे रिलेटेड उसकी कॉम्प्लिकेशन आप लोग उसमें मैलिग्नेंसी का भी पूछ लेना, जैसे बोल पे है, और साथ जो है फिर आपने हाइपो हाइपर के सिम्टम्स पूछने के साथ फूड के रिलेशन टू द फूड एक्सेट्रा, इसमें द कंप्लीट तो आपका सिस्टम इसमें सब चीजें आपको बता दें, चेंज ऑफ वॉइस कुछ है नहीं है। ये तो मुझे प्रेशर सिम्टम्स, फिर क्या कौन सा सिम्टम? प्रेशर सिम्टम्स प्रेशर सिम्टम और रीटर लेवल में नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ना, सीएन तो इससे क्वेश्चन तो करोगे ना आपने, तो घर तक पहुंचा दिया मैंने ये सब आपने पूछा सांस में आवाज उसमें ये पूछेंगे कि आवाज में तब्दीली नहीं हुई है, सिंपल सवाल, आवाज बैठी है खड़ी जो भी है उसमें मसला हो जाए। आपका पूछना आवाज में आपकी ऐसी है आवाज या आपको तब्दीली नोटिस की है, ठीक है ना। अब आप अगर हम थायराइड डिजीज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो पूछा जाता है आई साइंस का ये मतलब मानने में तकलीफ तो नहीं होती, तो अब नजर तो नहीं आती, तो इसमें ये है कि ये सारे रिलेटेड सवाल है। इसमें मैं चाह रहा था कि सिस्टमिक जो ये तो ऐसे मुख्तसर कर दिया जाए, और जब हमने एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है, हम कहते हैं कि रिगार्डिंग देखिए इसमें आप जब सवाल करते हैं ना कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट जो करनी है ना, अब मैं आपको इंतजार कर दूं, लेकिन आपने तो इंतजार किया, लेकिन अगर पेशेंट को एक रिस्पॉन्स दे रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अगर वो उसका डिलेड रिस्पॉन्स है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स पहले पूछने हैं जो कि उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस उस केस के हिसाब से वो आपने खुद ही जज करनी है और खुद ही बनाना है, ठीक है ना। और आपको अगर से थायराइड का है मामला, तो थायराइड डिजीज में हाइपो हाइपर के 2 लीडिंग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर अगर आप एक लीडिंग क्वेश्चन के अंदर चले गए तो आपके कम से कम 2 मिनट हो जाएंगे, आपके पास टोटल नहीं 12 मिनट, जैसे पूरी हिस्ट्री में नहीं है 10 मिनट समझे। तो ये टाइम मैनेजमेंट डिपेंड्स on your questions and the response of the patient. लेकिन कल भी जो करना होता है सॉरी नहीं वो ये था कि आपकी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट, किसी भी लेवल पे हवाला ऑफिसर से लेकर जब तक आप हिस्ट्रीज किसी ने भी नहीं ली होंगी अपने क्लिनिक के अंदर, आप एग्जाम में हिस्ट्री नहीं देते, आपको वो स्टेप्स याद नहीं रहती। ये चीजें रिफ्लेक्स की होती है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इज ओनली बाय प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। If you are not, अगर आप अपने क्लिनिक्स के अंदर पेशेंट को टालने आ गए मुंह खोलो चलो देखा खत्म, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट टेक हिस्ट्री ऑफ एवरी पेशेंट, लेकिन एज अ पीजी स्टूडेंट आप कम से कम हर ओपीडी के अंदर आप लोग पेशेंट को बिठाएं, किसी भी तरह मैनेज करें, बाद में करें, वार्ड में एडमिट होता है पेशेंट, एटलीस्ट 2 से 3 हिस्ट्री, 2 हिस्ट्रीज तो आपकी डिटेल होनी चाहिए और कम से कम ये सारा मैनेजमेंट उसी वक्त होगा जब आपकी प्रैक्टिस है। आप एग्जाम में जाके आप ये सोचिए क्या सवाल करना है। कल भी बात हो रही थी ना, डिस्ट्रैक्ट तो करता है, पुलिस तो करेगा, उसको थोड़ी पता है ध्यान देने, वो तो आप पूरे घुटने से शुरू करेगा कि मेरी 5 साल बड़े घुटने में जो है वो फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी नाक मेरी बंद हो गई, तो ये सब चीज तो आपकी होगी। बाकी टॉपिक वाइज तो जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला जैसे थायराइड है हमारा मंडे को इकबाल हुसैन साहब, तो वो हर चीज आपको उसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला, इसीलिए हमने सारे टॉपिक जो रखे हैं इनका मकसद यही है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में यही आते हैं, पेपर आउट है। अभी जैसे अगर लेंगे लेक्चर तो उसमें बिना नेक डिजीज है ना, सारा टॉप और शॉर्ट केस नेक मास्टर, अब नेक क्लासेस के अंदर आप यू कैन आस्क अबाउट द हिस्ट्री, क्या अगर नेक मास्टर तो उसकी क्या हिस्ट्री, मैंने जो आपको भी ये एक तरकीब दी है कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बेसिकली वही 12-15 डिजीज हैं जो कि यूजुअली एग्जाम के अंदर मौजूद है। अगर आपने उन्हीं से रिलेटेड हिस्ट्री में परफेक्शन दी हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट आपको डिफरेंट मिजाज के मिलेंगे, वो आपको अपने तौर पे एडजस्ट करना है, क्योंकि वो तो अब आपको नहीं कह सकते ना कि पेशेंट कितना एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, ये तो हम कोई नहीं कह सकते। लेकिन ये समझिए कि एग्जामिनर जैसे शिरा ने शुरू में कहा है बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जो उनको अगर वो पेशेंट कोई
بہت زیادہ وہ کر رہا تھا تو وہ پیشنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بس یہ بتا دیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو آپ پیشنٹ بالکل کوئی ایران قرآن کی کہانی سنا رہے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہسٹری آپ جب پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایگزامینیشن. تو میں نے جو ایک سیف ڈسٹریبیوشن بتائی تھی 10 منٹس اینڈ 20 منٹس، 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے. تو یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہسٹری ایگزامینیشن ہاف این آور میں کمپلیٹ ہو. تو جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ والا تو ایک بیل پہلے رہتی تھی ایٹ دا اسٹارٹ، پھر 5 منٹ پہلے ایک بندہ وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ 5 منٹس کا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو 5 منٹ رہ جائیں گے تو آپ نے جو ہے وہ سارا کا سارا ایگزامینیشن جو رہ گیا ہے جو لکھنا باقی ہے اس کو آپ نے آرگنائز کر دینا ہے. تو لاسٹ 5 منٹ کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ آف 30 منٹس کو لاسٹ 5 منٹس ایک وارننگ کوشچن ایک ہوتی ہے کہ جی آپ کے 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب لانگ کیس ہو گیا نا اور بیل بج گئی 30 منٹس کی تو بعض دفعہ ایگزامینرز پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ سسٹمک ہم نہیں کرتے ہیں زیادہ، چیسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈومن نہیں کر رہے ہوتے، وچ از ہر پارٹ آف ہسٹری تو ہے نا. اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کرنا ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن ٹائم کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا. یا اگر کوئی چیز آپ اس کو بھول گئے تو کلیور پلے کرتے ہوئے آپ اس کو جو ہے ایڈجسٹ کریں. فرض کریں یہ ایگزامینیشن میں آپ نے ٹریننگ پروگریس بھول گئے یا پیشنٹ میں بھول گئے، آپ ایک دم بعد میں یاد آ گئی. ٹھیک ہے. یا ایگزام کے بعد یاد آ گئی، اچانک سے فوراً یاد آ گئی تو آپ سے میں ایئر میں یہ چیز بھول گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے جو ایگزامینر ہے وہ ذہن میں رکھ کے چاہے کہ آپ کے ذہن میں تھی لیکن آپ اس کو اسکپ کر گئے یا لیکن وہ مان لیتا. اگر کوئی امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے تو وہ آپ پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنے کا. بعد میں ایگزامینر کو پوچھ لینا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. بظاہر آپ کے ذہن میں اگر ہے، کیونکہ اگر اس کوشچن کے بعد اور آپ خاموش رہے اس کے بعد آپ ڈیورنگ ڈسکشن آپ کو اچانک یاد آئے تو وہ نہیں مانی. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کا جو ہاف این آور کمپلیٹ ہوتا ہے پھر بیل بجتی ہے. پھر 2 ایگزامینرز ہوتے ہیں تو دونوں ایگزامینرز ساتھی ایک تو آپ کی پوری ہسٹری سن رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو فرسٹ ایگزامینر ہوتا ہے وہ اس کے پاس 15 منٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ایگزامینر کے پاس 15 منٹس ہوتے ہیں. یوزلی ایک ایگزامینر جب پورا کوشچنس کر رہا ہوتا ہے 15 منٹ تو دوسرا ایگزامینر آبزرو کر رہا تھا، خاموش ہوتا ہے. لیکن میں ضرور نہیں ہو سکتا بیچ میں کوئی ایک آدھ سوال وہ کر لیے. تو اس میں 15 منٹس میں جو پہلا ایگزامینر ہوتا ہے اور اس کے اندر تو کلینکل ایگزامینیشن اسکلز وہ تو جو ہے دونوں ایگزامینرز آپ کی نوٹ کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے مارکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دونوں آپس میں ڈسکس نہیں کرتے تو میں سلمان سے پوچھ رہا تم نے کیا دیا اس کو، میں کوئی دے دوں، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی اپنی مارکنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو کالمس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سی بی ایس ای کے اندر اتنا فیئر ججمنٹ مطلب یہ کہ اسسمنٹ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ڈفرینس تو امانگ دا ٹو ایگزامینرز تو پھر اس کو ریویو کرنا ہوگا. اگر مور دین 25% اسکور میں فرق آتا ہے 30% سے زیادہ ہے تو اس طرح عاطف نے جو 70% دے دی، میں نے 15% دے دی تو ویسے نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے میری کوئی بائسنس ہو یا ان کی کوئی فیورزم ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ایوالویٹ کیا جائے گا، وہ پھر ان کا اپنا سسٹم. تو یوزلی 2 ایگزامینرز جو ہوتے ہیں ان کا سپریٹ پارٹ ہے 15 منٹس ایچ. ٹھیک ہے. اور 15 منٹس کے بعد پھر بیل بجتی ہے تو دوسرا ایگزامینر ٹیک اپ کر لیتا ہے اور وہ اپنا پارٹ جو ہے ایگزامینیشن جو ڈسکشن کا ہے وہ لے کے چلتا ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ 30 منٹ یا 15 منٹس مزید پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک فائنل بیل بج جاتی ہے اور وہ آپ کا لانگ کیس جو ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. اب اس میں جو اسسمنٹ ہوتی ہے ایگزامینرز کے پاس اس میں ایک تو دونوں ایگزامینرز نے سارے کالمس بھرنے ہوتے ہیں اپنے فارم کے اندر. اب وہ اپنے اپنے حساب سے مارکنگ کرتے ہیں. ہاں. تو اس میں جو کلینکل اسکلز کا ایک الگ سیکشن ہے. فرض کریں گے 30% مارکس ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ناٹ ایگزیکٹلی، ہو سکتا ہے 20 ہو سکتا ہے 40، لیکن اس کا ایک سیپریٹ ہے، اس میں وہ ٹک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کالم میں اس کے اتنے مارکس. اسی طریقے سے پھر جو پہلا جو ایگزامینر ہوگا وہ شروع کرے گا. یہ پہلا جو بلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کیس پریزنٹیشن،
वो कहेगा जी डॉक्टर साहब आपने हिस्ट्री ले ली, अब अपना केस आप प्रेजेंट करें। तो विद इन 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स आपने पूरा विद पॉजिटिव फाइंडिंग्स, नेगेटिव फाइंडिंग्स को आप साइड कर रखें, लेकिन जो पॉजिटिव फाइंडिंग है उसके हिसाब से अपना केस, और जितना अच्छा आप केस प्रेजेंट करेंगे डेफिनेटली आपके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो वो जो पहला एग्जामिनर है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के अलावा करेक्टनेस ऑफ फाइंडिंग, यानी डायरेक्ट वो पूछेगा जी डॉक्टर साहब आपकी क्या फाइंडिंग्स थी इस पेशेंट की, ठीक है, तो वो फाइंडिंग्स पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स, ठीक है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ये वाला जितना, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक एग्जामिनर देगा। ये 15 मिनट के अंदर इन चीजों पे, जैसे केस प्रेजेंटेशन है 3-4 मिनट उसमें निकल गए, फिर आपकी डायग्नोसिस एंड करेक्टनेस ऑफ फाइंडिंग्स के अंदर 3-4 मिनट निकल गए। तो इस तरीके से ये 15 मिनट्स में ये पूरा कंपोनेंट जो होता है वो कंप्लीट होता है और सारी चीजों की अलग मार्किंग होती है और फिर कलेक्टिवली देखा जाता है और दोनों एग्जामिनर्स की शीट चली जाती है और फिर वो कलेक्टिव रिजल्ट आता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो ये आप जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात हो रही है, तो आपको पता है कम से कम 7, 8, 9, 10 चीजें हो सकती है किसी भी जगह से, एरिया टू एरिया अलग अलग चीज हो सकती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो उसमें आपको, और दूसरा ये कि आप फाइंडिंग, आप इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, लॉजिकल फाइंडिंग्स बता रहे हैं अपना, उसमें आपसे आर्ग्यू हो सकता है, क्योंकि आपकी फाइंडिंग हो सकता है एग्जामिनर ने जो पहले एग्जामिन किया है उस पेशेंट को बिफोर योर लॉन्ग केस स्टार्ट, उसमें और आपके अंदर में डिबेट हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, ठीक है। इसमें जो है वो बहुत ज्यादा लाल दफा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं कि वो बस पत्थर पे लकीर वाली बात है, उसमें वो खामा की आर्गुमेंट करते हैं, इरिटेट करते हैं, इट इज नॉट फिजिबल, ठीक है ना। तो उसको बहुत ही, आपको अगर आप अपने बहुत कन्विंस्ड हैं तो आप लॉजिक्स देके और एग्जामिनर को कन्विंस करें, ठीक है। तो दूसरा वाला जो एग्जामिनर होगा उसके पास 15 मिनट्स है, तो वो बायोलॉजी और दूसरे एग्जामिनर ने स्टार्ट किया, तो वो उसी केस पे आपसे इन्वेस्टिगेशंस पे डिटेल बात करें। तो हो सकता है कि उसके पास जितनी डिटेल्स मौजूद है, रखी हुई हैं, फाइल में लगी हुई है, जैसे बायोप्सी है, कोई सीटी स्कैन फाइंडिंग्स हैं या दूसरी चीजें हैं, ठीक है ना, या कोई और इन्वेस्टिगेशन है, तो वो आपके सामने पेपर रख सकता है कि सर ये इसकी है, अब आप इस पर डिस्कस करें। इसीलिए जो है वो शुरू से ही आदत होनी चाहिए कि आप हिस्टोपैथोलॉजी की सिर्फ कंक्लूजन को या रिमार्क्स को ना पढ़ें बल्कि इन डिटेल पढ़ें, ठीक है। उसमें माइटोसिस हो रही है, इसमें और बहुत सारी जो भी फैक्टर्स हैं, चीजें हैं जो मेलिग्नेंसी को शो कर रही हैं। फिर आजकल तो जो है वो और बहुत सारी सीरीज होती है इन्वेस्टिगेशन में, सीडी और सारी, तो वो आपको पता होनी चाहिए, बायोप्सी रिपोर्ट पूरी आपको पता होनी, वो आपके सामने रख देगा, उसमें फिर डिस्कशन करेगा, उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं करता। तो इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन उसकी, और जो इन्वेस्टिगेशन आप ऑर्डर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट केस, उसकी आपको जस्टिफिकेशन देगी। आप सीटी स्कैन कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे, तो आपको डिफेंड करना होगा कि मैं सीटी स्कैन क्यों कर रहा हूँ और व्हाई नॉट एमआरआई, ठीक है। तो उसमें आपके पास जहन में होना चाहिए, आपको उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। फर्ज करेंगे कोई सिंपल सी चीज है जिसमें सीटी स्कैन इज नॉट इंडिकेटेड, तो आप क्यों करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं है ना, अगर जरूरत नहीं लेकिन आप कर रहे हैं तो आप कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं किस वजह से ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट प्लान, जाहिर इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई, उसके बाद उस डिजीज का डिटेल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से शुरू होती है बात और फिर सर्जरी एंड देन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और वो सारी चीजें आती हैं। कहीं पे फ्लैग की बात होगी, कहीं पे डिजीज की बात होगी। अब फर्ज करें कि सीएसएम में उसमें आपने डिफरेंशियल में ट्यूबरकुलोस बताया था, ठीक है, ट्यूबरकुलोस, अब उसमें जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की बात हो सकती है, फिर ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट है उस मेडिसिन की बात हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेट या एडवर्स इफेक्ट्स की बात हो सकती है, डोजेज की बात हो सकती है। ब्रॉडली आपको कीमोथेरेपी है उसके कम से कम जो कीमोथेरेपिक एजेंट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए।
methotrexate कहाँ देनी है, cisplatin कहाँ देनी है, and so many others. क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है, अगर आपकी जॉब नहीं है oncologist की, लेकिन आप एक ये कहेंगे कि I will take the opinion from the, I will refer this patient to the oncologist, ये for the expert, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. रेडियोथेरेपी की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी, कितनी डोज दे सकते हैं, कितनी, ये तो आपका पार्ट है स्टडीज. ये नहीं हो सकता कि मैं तो रेडियोथेरेपिस्ट उसके बाद भेज दूंगा, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं. तो आपको जो कोर नॉलेज है उस मैनेजमेंट के से भी, मैनेजमेंट प्लान भी वो करना. लैब्स में ठीक है, प्लास्टिक सर्जन करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, व्हाट आर द थ्री फ्लैप्स, रोटेशनल फ्लैप्स, ठीक है, लोकल फ्लैप्स क्या है, डिस्टेंट फ्लैप्स क्या है, ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. तो मैनेजमेंट तो आप समझ लें सबसे ज्यादा अगर अमंग दिस ये जो पार्ट है कंपोनेंट, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर है किसी की, तो मैनेजमेंट प्लान, ठीक है. तो मैनेजमेंट प्लान बहुत अच्छा सा आना चाहिए. फिर प्रोग्नोसिस एंड काउंसलिंग, दादा का वो बिठा देते हैं कि अब आप मेरे सामने काउंसिल करेंगे, तो आप एक दो मिनट के अंदर उस पेशेंट को रिलेटेड टू दैट एरिया आपने काउंसलिंग करनी है. काउंसलिंग का आपको एसओपीज पता होना चाहिए कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों को आपको कवर करना है, ठीक है. और इसी तरीके से इन द लास्ट रीसेंट एडवांसेस, ठीक है, अगर उस एरिया के अंदर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है, कोई नई चीज़ आ गई है, तो उसके साथ, जैसे ये है हम ट्रेडिशनली क्या करते थे, माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, ठीक है, लेस मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी आ गई थायराइड के अंदर. तो ये जो रिसेंट एडवांसेस हैं या सेरेब्रल ग्लैंड ट्यूमर्स में, तो ये सारी चीजें हैं रिसेंट एडवांसेस. इसके अलग पॉइंट्स होते हैं, बेशक वो 5 नंबर ही होते हैं, लेकिन ये एरिया कवर होता है एंड वी एग्जामिनर हैज टू मार्क अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स, ठीक है. काफी तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट केस, लॉन्ग केस. अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ मौजूद हैं, आप इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं. टाइम सेव करने के लिए रोज में रमजान है, इस वजह से, और अभी एक लेक्चर और भी है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है. तो जो लोग जा रहे हैं एग्जाम में, अपने आप को कंपोज करें, रिलैक्स, स्माइलिंग फेस के साथ जाएं, वेल ड्रेस होके जाएं, ठीक है.